So till last class we were studying advanced Java, and in the advanced Java classes we had already seen exceptional handling and then collection framework. In the last class I said that we will study Spring Boot soon, and then parallelly we will study advanced Java topics also. So we'll discuss some introduction part of Spring Boot today. But before that, we will go for file handling. Uh, the file handling is a very important concept because whenever you are running any program and you are using any data on the console, or you are storing it in array or collection, it is stored temporarily. But for permanent storage, either we have to store it into database, or we have to store it into a file. So this file handling concept is very important. uh, Generally questions are asked very less in the interview related with file handling. Only few basic questions will be asked, but during project work or in coming professional life, whenever you will work as a developer, you will have to use file handling a lot. So, especially in those applications where the data is being stored in text file or in form of image, videos, wherever, and less data storage has been used, database storage has been used, their file handling becomes very important. So, the thing is, why we should study file handling and what are the benefits of studying file handling, that we should see first. I think some slides we had already seen in the last class. Okay, so today again we'll just revise some few slides. Then we will go for file handling. We will see the theory part. We will see the practical examples also. And I would request to all of you that whichever file related with the topic file handling is would be shared to you, please go to the go and you just run it, you just check what is happening inside that code. Okay, uh, so I think almost all the students have came. Those who have not came, they can see in the revision classes, but the actual class and revision class are totally different. Okay, the revision class maybe the speed would be faster, and we will not study in this in normal flow that is that we are studying in the real classes. So during file handling theory, if you find any confusion, you can ask. Okay, so uh, as I had already told you that so far we had used the variables or arrays or collections for storing data inside the program. But using that way, there are some problems. So what are the problems? Whenever the program is terminated, the data gets lost. Or if we are going to handle large volume of data, then it will be very difficult to handle those large volume of data using variables and arrays. Okay, please be concentrate here, and then you just listen what I am telling. You just listen, you just have a focus on screen. If you want, you can prepare a short notes as well. Okay, so if we are going to handle large volume of data, then we will face a difficulty if we are using just variables and arrays. So to overcome all these problems, or to overcome this permanent temporarily storing problem, what is the solution? The solution is the data must be stored somewhere on the hard disk or the permanent storage device. Okay, so uh, to store the
the data into permanent storage space or hard disk, we can use the concept of file. ठीक है, अब तक हम लोग जो कंसेप्ट यूज कर रहे थे प्रोग्राम में डेटा स्टोर करने के लिए एरे या वेरिएबल के थ्रू, उसके साथ प्रॉब्लम थी कि प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, डेटा लॉस्ट हो गया। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हुआ तो उसे वेरिएबल एरे में यूज करना बहुत ही डिफिकल्ट था। सो जो टेम्पररी स्टोरेज प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए परमानेंट स्टोरेज स्पेस का यूटिलाइज किया गया, कंसेप्ट आया। और जो डेटा हम स्टोर करते हैं उस परमानेंट स्टोरेज में, उसके लिए फाइल्स का कंसेप्ट आया। तो फाइल जो है वो बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है जो कि स्टोर किया जाता है। और फाइल प्रोसेसिंग की जब बात करते हैं, देन इट इंक्लूड्स क्रिएटिंग द फाइल, updating the file, and updating the file means we can rename the file, okay, we can set access to the file, और another operation में भी manipulating data in a file। यानी जब हम एक फाइल प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? फाइल को क्रिएट करना, फाइल को अपडेट करना, अपडेट करने का मतलब फाइल का नेम रीनेम कर दिया हमने, फाइल का सिक्योरिटी एक्सेस चेंज कर दिया हमने, फाइल जो है विजिबल है उसके प्रॉपर्टी को हिडन चेक करना, मैनिपुलेटिंग डेटा मीन्स जो डेटा रिटेन है इनसाइड दैट फाइल उस डेटा में कुछ चेंजेस करना। ठीक है, तो सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फाइल। और जो फाइल स्टोर होती है हमारे स्टोरेज डिवाइस में, वो बेसिकली यूनिकोड कैरेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज, वो 0 और 1 के केस में करता है, 0 और 1 के फॉर्म में करता है। ठीक है, बाइट वाइज करता है, एंड उससे भी छोटे बीट, एवरी सिंगल बीट हेयर वी हैव शोन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बीट इज शोन एज ए बाइट। ये कंसेप्ट आपने इनिशियली पढ़ा होगा कि बीट बाइट इस तरह की चीज़ें, किलो बाइट, मेगा बाइट, ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी हमने। तो फाइल हैंडलिंग के केस में एक टर्म आता है स्ट्रीम। इफ वी आर स्टडिंग फाइल, वी मस्ट नो अबाउट द स्ट्रीम। स्ट्रीम इज नथिंग बट अ पाथ थ्रू विच डेटा फ्लोज। स्ट्रीम जो है एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्चुअल थ्योरी है। इसका मतलब यह है कि कोई एक पाथ जिसके थ्रू होकर डेटा फ्लो कर रहा है वो स्ट्रीम कहलाता है। और जो डेटा फ्लो होगा, जाहिर सी बात है, वो किसी एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होगा। तो जहाँ से डेटा शुरू हुआ, मीन्स जहाँ से डेटा रीड करने का काम कर रहे हैं, वो हो गया सोर्स। और जहाँ पे हम राइट करने का काम कर रहे हैं वो हो गया डिस्टिनेशन। तो स्ट्रीम का दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या हो गया, एट्रीब्यूट क्या हो गया, एक तो सोर्स और एक डेस्टिनेशन। सोर्स के रूप में हम डेटा कहाँ से रीड कर सकते हैं? जब भी कोई प्रोग्राम हम रन करते हैं तो डेटा के रीड करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। कीबोर्ड में अगर हम कोई टाइप कर रहे हैं की, तो वो भी हमारा एज ए सोर्स काम करेगा। माउस में हमने लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, दैट कैन ऑल्सो वर्क एज ए इनपुट। मेमोरी से स्टोर कर लिया, मेमोरी में ऑलरेडी कोई फाइल है, वहाँ से रीड कर रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू कहीं से आया। और आउटपुट का मतलब हो गया कि या तो हम उस डेटा को स्क्रीन पे दिखाएं, प्रिंटर के थ्रू पेपर पे प्रिंट करें, या फिर हम किसी और फाइल में मेमोरी में स्टोर कर दें। तो इस तरह से जो स्ट्रीम है बेसिकली जो सोर्स है जहाँ से भेजा जाता है, डेटा को रीड करते हैं, वो हो गया हमारा इनपुट स्ट्रीम। और जहाँ पर राइट करते हैं वो हो गया आउटपुट स्ट्रीम। इस स्लाइड में दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि स्ट्रीम क्या है। तो स्ट्रीम इज ए पाथ अलोंग विच डेटा फ्लोज। एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है। सोर्स के ऑप्शन क्या क्या हैं, डेस्टिनेशन के ऑप्शन क्या क्या हैं। और जो सोर्स है वो बेसिकली इनपुट स्ट्रीम कहलाता है, और जहाँ पे हम राइट कर रहे हैं जो डेस्टिनेशन है उसे हम आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं। किसी भी फाइल को जिसे जावा में बनाया जाता है, बेसिकली इंड ऑफ फाइल को -1 से इंडिकेट किया जाता है उस फाइल में, कि अगर कैरेक्टर -1 मिल गया इट मीन्स इट हैज रीच्ड एट द एंड ऑफ फाइल। वो कैसे होगा, वो अभी आपको जब उसका प्रोग्राम आप देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। बेसिकली देयर इज ए सोर्स विच इज कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम, जहाँ से रीड करने का काम करता है हमारे प्रोग्राम के थ्रू। और प्रोग्राम के थ्रू अगर हम कहीं राइट कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन और आउटपुट स्ट्रीम।
सो बेसिकली टू काइंड्स ऑफ स्ट्रीम इन जावा आर इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, और जो पैकेज इसमें यूज होते हैं वो होता है जावा डॉट आईओ डॉट पैकेज। आपने अभी तक देखा होगा कि अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई काम करना होता है जावा में, तो आप इंपोर्ट करते हैं बेसिकली जो इनबिल्ट पैकेजेज हैं जो ऑलरेडी जावा ने प्रोवाइड कर रखे हैं, उन पैकेजेज को आप इंपोर्ट करते हैं। तो अगर फाइल हैंडलिंग रिलेटेड वर्क आपको करना है अपने प्रोग्राम में, देन यू मस्ट इंपोर्ट जावा डॉट आईओ पैकेज। ठीक है। सो व्हाट इट कंटेंस, जावा डॉट आईओ पैकेज क्या रखता है अपने आप में। ठीक है। एक बार अभी पहले थोड़ा सा समझते हैं, समझ में आ रहा है लोगों को? अभी ना थोड़ा सा समझते जाइए, अभी थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, प्रैक्टिकल पार्ट में नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट में हो सकता है कि 10 पॉइंट बताया जाए तो 4 पॉइंट ही दिमाग में रहे, कोई बात नहीं, पहले उतना ही समझते हैं। ठीक है। धीरे धीरे करके चीज़ें और समझ में आने लगेगी। तो मेन मेन चीज़ें याद रखनी है एटलीस्ट, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम का सोर्स क्या है, आउटपुट स्ट्रीम का सोर्स क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी फाइल के कंसेप्ट्स की, ठीक है, कौन सा पैकेज हम इंक्लूड करते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें, इनको याद रखना है बेसिकली। सो जावा डॉट आईओ पैकेज के अंदर जो है आपके कई सारे स्ट्रीम से रिलेटेड क्लासेस हैं जो फाइल से डेटा रीड करने का काम या फाइल में डेटा राइट करने का काम करते हैं। अब फाइल में जो डेटा रीड या राइट कर सकते हैं वो भी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम बाइट वाइज करें या तो कैरेक्टर वाइज करें। ठीक है। तो इसके लिए दो आते हैं स्ट्रीम क्लासेस, वो होता है बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम। पहले खाली थ्योरेटिकल पार्ट आप समझते चलिएगा, फिर प्रैक्टिकल में आएंगे कि बाइट स्ट्रीम क्लास कैसे यूज करते हैं और कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास कैसे यूज करते हैं। ये सारी फाइल्स भी, प्रैक्टिकल फाइल्स आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी ग्रुप पे। सो पहले एक बार देख लेते हैं बाइट स्ट्रीम क्लास। ठीक है। तो बाइट स्ट्रीम क्लास जो है, ये इसके पास अपने क्लासेस होते हैं इनपुट के लिए भी, और अभी हम बाइट वाइज का देख रहे हैं कि अगर मुझे बाइट वाइज ऑपरेशन करना हो तो मैं कैसे करूँगा, और अगर कैरेक्टर वाइज करना हो मुझे तो कैसे करूँगा। इन चीज़ों को पहले भी एक एक करके देखते हैं। ठीक है। तो अगर वन वन बाइट ईच करना हो मुझे रीड या राइट का काम, तो उसके लिए बाइट स्ट्रीम क्लास होती है। और किसी भी इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम के अंदर जो जनरल मेथड्स होते हैं वो होते हैं रीड। रीड भी कई तरह के हो सकते हैं। एक तो है कि किसी इनपुट स्ट्रीम से हम सिर्फ रीड करें, एक ये हो गया कि मैं रीड करूं और उसको मैं एरे में स्टोर कर दूं। ठीक है। जो मेरे पैरामीटर में दिया हुआ है। एक है कि कुछ मेरे पास एरे में स्टोर तो हो लेकिन लिमिटेड डेटा रीड हो जहां से मैं रीड कर रहा हूँ, कोई एक पॉइंट एन से शुरू करे और एम तक जाए। इसी तरह से ये चेक करने के लिए कि मेरे फाइल में और बाइट्स अवेलेबल हैं अब कि नहीं, यानी आगे कंटिन्यू रीडिंग करनी है या नहीं, उसके लिए अवेलेबल मेथड यूज होता है, रीसेट, क्लोज। अभी इन सब का प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे। ठीक है। और आउटपुट स्ट्रीम के राइट करने के लिए, तो अभी आप ये याद रखिए कि चाहे वो कैरेक्टर स्ट्रीम हो चाहे बाइट स्ट्रीम हो, उनसे रीड या राइट का काम हम लोग करते हैं। ठीक है। जो बाइट स्ट्रीम हो गया उसमें इनपुट स्ट्रीम क्लासेस, आउटपुट स्ट्रीम होते हैं, आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस होते हैं, उनके मेथड्स होते हैं। कैरेक्टर स्ट्रीम में रीडर और राइटर क्लासेस होते हैं। ठीक है। ये आपका बेसिकली हायरार्की आप देख सकते हैं। अभी हम लोग थ्योरेटिकल में चल रहे हैं, तो अभी हम लोग बस थ्योरेटिकल को समझते चलिएगा थोड़ा थोड़ा, जो भी समझ में आ रहा है कि अगर मुझे जावा स्ट्रीम क्लासेस पे काम करना हो तो बाइट वाइज अगर करना हो तो बाइट स्ट्रीम क्लास यूज करूंगा, कैरेक्टर वाइज यूज करना हो तो कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस यूज करूंगा। दोनों में इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट, सॉरी, इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीमिंग के लिए अलग अलग क्लासेस हैं। बाइट स्ट्रीम में जो क्लास है उसका नाम है इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, और कैरेक्टर स्ट्रीम में जो है उसका नाम है रीडर और राइटर क्लासेस। ठीक है। ये इनकी हायरार्की है, इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा आपको। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पहले एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि अगर खाली थ्योरी करते चलेंगे तो थोड़ा समझना मुश्किल होगा, प्रैक्टिकल भी बीच बीच में करते चलना। जैसे अगर मुझे कुछ डेटा रीड करना हो किसी फाइल से, किसी फाइल से अगर मुझे डेटा रीड करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो मैं एक बार इसका एग्जांपल देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो थ्योरी बताई गई समझ में आ रहा है क्या? मैं एक दो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ किसी से?
यस सर। ठीक है। सो वैष्णवी, हमें फाइल के कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास अरे और कलेक्शन ऑलरेडी है? Over the problem of temporary storage. वॉइस आपकी क्लियर नहीं आई, या शायद मेरे पास नेटवर्क में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है? सर टेम्पररी स्टोरेज प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो स्ट्रीम क्या होता है ये बताएंगी आसफिया। स्ट्रीम क्या है, या स्ट्रीम का पाथ जो है वो किस लिए यूज होता है? डेटा फ्लो के लिए डेटा सर। फ्लो के लिए, यस, डेटा फ्लो के लिए। अब डेटा फ्लो जहां से हो रहा है उसे क्या कहते हैं अदिति? उसको सोर्स बोलते हैं। सोर्स के मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है अदिति, ये बताइए। सर इनपुट एंड आउटपुट, नहीं, जैसे बाइट। नहीं, नहीं, नहीं। अगर मुझे सोर्स स्ट्रीम की ज़रूरत हो, सोर्स स्ट्रीम, मेरे पास क्या क्या डिवाइसेज हैं, चलिए डिवाइसेज आप क्लियर हुआ? अच्छा अच्छा। यस सर। सर कीबोर्ड हो गया, हम्म। माउस, ठीक है। और अगर वर्चुअल कीबोर्ड ये सब हो सकता है तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क हो सकता है? नेटवर्क। नेटवर्क से रीड करने का काम कर सकते हैं या नहीं? सर हम यूज तो नहीं किए हैं, कर पर सकते हैं, नेटवर्क स्ट्रीमिंग, नेटवर्क पे भी स्ट्रीमिंग का काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, ओके सर। प्रिंटर जो सर है वो, एग्जाम्पल में बता सकते हैं? यस कुलदीप बताइए। सर एग्जाम्पल दे सकते हैं नेटवर्क से कैसे, मतलब हम लोग ये कर जब सकते जब हैं? जब सीरियलाइजेशन का बताऊंगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, खैर अभी पहले इस पे आते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि टॉपिक से अगर ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट करेंगे तो दिक्कत होगी, है ना। हाँ, खैर अभी मैं बीच में बताऊंगा नेटवर्क का, वही बता दूंगा, एक एग्जांपल तो बता ही दूंगा। फिलहाल हम लोग कहाँ पे थे, अभी किन से बात हो रही थी? अदिति। अदिति, हाँ कहाँ थे, मेरे बताइए यस सर। बताइए। बोले कि कौन कौन से डिवाइस से हम इनपुट दे सकते हैं। हाँ, ठीक है। आउटपुट के लिए कुलदीप, क्या क्या डिवाइसेज अवेलेबल हैं हमारे पास, क्या ऑप्शंस हैं? सर मॉनिटर हो जाएगा, फिर प्रिंटर हो जाएगा सर। हम्म, और अब ये बताइए कि मेरे पास कौन सा पैकेज जो है वो फाइल हैंडलिंग के लिए हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है, मालिनी? निरुपम? सॉरी सर, नहीं आता है मेरे को। अच्छा, कोई बात नहीं। प्रीतिशा, फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट यूज करने के लिए, फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट यूज करने के लिए मुझे कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में? java.io.package सर। java.io, ठीक है। तो java.io या उसके जो सब पैकेजेस हैं उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं कितनी तरह की स्ट्रीमिंग जो है वो जावा में रीड राइट के लिए यूज होती है? राजू। इनपुट स्ट्रीम। राजू, यस सर। मेरे पास स्ट्रीम क्लासेस के एग्जांपल कौन कौन से हैं? स्ट्रीम क्लास के बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम। ठीक है। रमेश, बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम में, कोई बात नहीं मालनी, मैंने देख लिया था आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे, ठीक है मालनी। रमेश, अ, हाँ सर। रमेश बताइए, बाइट स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से क्लासेस यूज होते हैं? सर मालूम नहीं है इसके बारे में। अभी आया स्क्रीन पे? यस सर। कौन कौन से हैं? बाइट स्ट्रीम क्लासेस में इनपुट स्ट्रीम क्लासेस हैं और आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस हैं। ठीक है। इनपुट स्ट्रीम क्लासेस के
जो है अभी मैंने कुछ मेथड्स आप लोगों को बताए थे, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम क्लासेस के कौन कौन से मेथड हैं ये बताएंगी शीतल। सर ये नहीं पता। अच्छा ठीक है, रितु। नहीं पता सर। ठीक है, देखिए मालिनी। अभी देखिए आपके स्क्रीन पे आएगा, ये इनपुट स्ट्रीम के इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, ठीक है। रीड, अवेलेबल, स्किप, रीसेट, क्लोज। एटलीस्ट रीड और राइट ये जरूर याद रखिएगा, दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स, ठीक है। क्लोज भी अ, अच्छा, क्लोज अगर मुझे करना हो, ठीक है, आप लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पढ़ा है, बताइएगा। मालिनी आप बताइएगा कि अगर मुझे क्लोज, मालिनी का फिर क्या होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद, है ना। वैष्णवी आप बताइए, अगर मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा है फाइल का, और अगर वो मुझे क्लोज करना हो तो मैं ट्राई के अंदर करूँगा, कैच ब्लॉक के अंदर करूँगा, या फाइनली ब्लॉक के अंदर करूँगा। मैंने फाइल रीडिंग के लिए इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना रखा है, अगर मुझे उसे क्लोज करना हो तो मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर करूँगा, या कैच ब्लॉक के अंदर, या फाइनली के अंदर। फाइनली के अंदर करेंगे, ठीक है। हम्म, ठीक है, एक बार कुछ एग्जांपल सब हम लोग। रीड फ्रॉम फाइल डॉट जावा, लेट्स सी फर्स्ट फाइल हैंडलिंग। See, we have a very small program which is being used to read data from a file. ठीक है, and we are using buffer reader and file reader to read the data. Let's see first where is this h demo file.txt. See, we have a file named demo file, and it is containing some text. Okay, some characters are there. We'll just run this program, then we'll see what we are getting on console as an output. See, the same content which was available in the demo file we got on the console. Okay, so what we have done, we have used this try, and inside this we have used a file named demofile.txt. ठीक है, Excuse me, sir. यस बताइए। Sir, could you please repeat, sir? Actually, network issue हो गया था, तो I was not able to listen up to नो you. इशू, लास्ट कहाँ तक सुना था आपने? सर, आप वैष्णवी से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इनपुट स्ट्रीम को हम लोग कहाँ पर ये करेंगे, ट्राई हाँ कैच वाले। ठीक है,
हाँ, तो ये था कि अगर मैंने कोई इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम या फाइल रिलेटेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसे मैं क्लोज कहाँ पर करूँगा? ट्राई ब्लॉक के अंदर करूँगा, कैच ब्लॉक के अंदर करूँगा, या फिर मैं फाइनली ब्लॉक के अंदर करूँगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल देख रहे थे। ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड जो था हमारा वो यही था। ये हम लोगों ने कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे थे कि जावा के जो स्ट्रीम क्लासेस हैं, तो अगर मैं बाइट वाइज रीड करना चाहूँ या कैरेक्टर वाइज, तो इसके अंदर अवेलेबल क्लासेस कौन कौन से हैं? तो बाइट के अंदर थे इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, कैरेक्टर के अंदर थे रीडर क्लासेस और राइटर क्लासेस। ठीक है, इसी तरह से इनपुट स्ट्रीम के भी अलग अलग जो हैं वो बेस क्लासेस, सॉरी चाइल्ड क्लासेस हैं, और आउटपुट स्ट्रीम के भी। ये जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मेनली जो आपके यूज होने वाले हैं मैक्सिमम वो बफर रीडर, कैरेक्टर रीडर, ये सब हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स की बात की कि आइए इन एग्जांपल्स को एक बार रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है और कैसे यूज होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर उस फाइल का पाथ देना होता है जो फाइल रीड कर रहे हैं, और उसे बफर रीडर में एज ए पैरामीटर पास किया इसको। ठीक है, और वन बाय वन इसको रीड करने की कोशिश की। रीडर क्लास जो है वो क्या करता है, सॉरी बफर रीडर का ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर रीड लाइन मेथड जो है वो लाइन वाइज जो है हर एक फाइल से रीड करने का काम करेगा, और उसको आप एज ए प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास कुछ और भी फाइल्स हैं, एक बार उनको भी देखते हैं। इसे रीड फ्रॉम फाइल स्कैनर। ठीक है, अगर मुझे स्कैनर के थ्रू करना हो, स्कैनर क्लास के थ्रू, तो वहाँ भी मैं फाइल का, ये देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये लगभग सारे जगह आपका काम आएगा। फाइल कुछ कुछ जो है क्लासेस, जैसे फाइल हो गया, बफर रीडर हो गया, इनपुट स्ट्रीम हो गया। ठीक है, ये सब आपको मैक्सिमम जगह फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट में यूज होने वाले हैं। ठीक है, इनमें ऐसा नहीं कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू के, बट हाँ नॉलेज होनी चाहिए इसकी। ठीक है, कई जगह ऐसा होता है कि अगर नेटवर्क रिलेटेड जॉब हो गई, तो वहाँ पे फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट आप लोग का यूज हो सकता है। ठीक है, तो इन सब क्लासेस को बेसिकली आपको देख लेना है एक बार रन करके, कि हाँ यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है, कैसे इनको रीड करने का काम करते हैं। अगर मुझे फाइल स्कैनर के थ्रू रीड करना हो तो फिर वो कैसे करेगा। ठीक है, एक ही फाइल को रीड करने का अलग अलग तरीका है, आप जो भी चाहें यूज कर सकते हैं, बट द रिकमेंडेड इज बफर रीडर। बफर रीडर जो है वो परफॉर्मेंस वाइज यूज किया बेटर होता है, ऑप्टिमाइज होता है ये। ठीक है, थ्योरी जब भी बाकी है, अभी और आगे देखेंगे अभी। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे राइट करना हो किसी फाइल में, मेरे पास देखिए एक है डेमो राइट, मुझे ये फाइल बनाना है, अभी बना है नहीं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, अगर बना हुआ है तो अभी हटा देते हैं हम लोग। जैसे डेमो राइट फाइल है, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इट मीन्स आई डोंट हैव फाइल नेम्ड विथ डेमो राइट फाइल इन एच ड्राइव। इन एच ड्राइव we don't have any demo write file. So using buffered writer, we want a file and we want to write this character into the file. So how do we use? We will use write method of buffered writer. ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना, बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर है ना, क्लासेस है ना उसके ऑब्जेक्ट के, कि अगर कोई क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट न्यू के कीवर्ड के थ्रू बनाए जाते हैं, राइट। यस सर। ठीक है, कंसोल पे अभी कुछ नहीं आया, अगर चाहते तो इसके बाद हम लोग प्रिंट कर सकते थे कुछ और। अब विल चेक कि वो फाइल बना है कि नहीं, डेमो राइट फाइल। ठीक है, सी डेमो राइट फाइल, इट इज जस्ट क्रिएटेड December 5th, time is 1855. Okay, and we'll see that the text that we have passed, see
hello writing some words to this file using Java and same character we had used here. तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है कि इसमें हम लोगों ने एक फाइल से रीड करने का काम किया था फाइल रीडर के थ्रू, और यहाँ पे हम लोगों ने राइट करने का काम किया है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 जो है क्लासेस उसका देख लीजिएगा कि मेथड्स कैसे रीड और राइट करने का काम करते हैं। ठीक है, बट अगर कल को आप जैसे सन सर्टिफिकेशन करते हैं जावा की, और उसमें अगर टॉपिक है फाइल हैंडलिंग, उस केस में आपको इसको डीप में पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, अदरवाइज इसके रीडर राइटर इनपुट स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल क्लास दीज आर मोर देन एनफ। बाकी आपको कुछ कुछ प्रोग्राम्स ऐसे पता होने चाहिए, जैसे कि आप जब भी किसी फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपको ये चेक करना पड़ सकता है कि वो फाइल मेरा एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। ठीक है, कई बार आपके पास ऐसे केसेस आते हैं, जैसे मान लो मैं किसी स्टूडेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है, प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल बना रहा हूँ। अब ये हो सकता है कि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट की फाइल पहले से अवेलेबल हो, अगर अवेलेबल है तो फिर फाइल को ओवरराइट नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज फाइल का डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो अगर मुझे चेक करना हो कि कोई फाइल मेरा अवेलेबल है कि नहीं, तो मैं उसके लिए एग्जिस्ट मेथड का यूज करता हूँ फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, ये मेरा फाइल क्लास है, इसको इसमें मैंने पाथ पास कर दिया कि मुझे कौन से फाइल पे काम करना है। तो मैंने फाइल ऑब्जेक्ट को बताया कि मेरे पास एक फाइल है एच ड्राइव में डेमो राइट फाइल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं, ये नाम कुछ भी ले सकते हैं आप। मुझे जस्ट एक फाइल चेक करनी है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो केवल ये दिखा दे कि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो वो क्रिएट कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फाइल अवेलेबल है कि नहीं एच ड्राइव में। ये फाइल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, हम लोग अभी इसको चेक करते हैं रन करके। ठीक है, अपने को प्रोग्राम में ये चेक करना है कि अवेलेबल है कि नहीं। देखिए, इसने ये दिया कि फाइल क्रिएटेड, इसका मतलब कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे चेक किया गया है, फाइल के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप जिस भी फाइल को रीड राइट करने का काम करते हैं, आपको फाइल क्लास के कंस्ट्रक्टर में उसका पाथ पास करना पड़ता है। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जिस फाइल पे काम करना है, चाहे वो फाइल रीड करना हो राइट करना हो, तो आपको उसका पाथ पास करना पड़ता है। पाथ जो है वो आपको कंप्लीट पाथ पास करना पड़ता है इसका। ठीक है, देखिए मैंने बिल्कुल इनिशियल ड्राइव के अंदर से काम करना इसका शुरू किया। अब माई फाइल ये जो ऑब्जेक्ट बना, इसके पास इसका रेफरेंस आ गया। अब मैं इस पे अलग अलग मेथड्स अप्लाई कर सकता हूँ। एक तो ये कर सकता हूँ पहले कि ये फाइल एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरे पास जो कंसोल पे आया वो आया फाइल क्रिएटेड। फाइल क्रिएटेड का मतलब ये एल्स मेथड के अंदर गया है, सॉरी एल्स ब्लॉक के अंदर गया है। एल्स ब्लॉक के अंदर गया है तब इसने फाइल एक क्रिएट कर दिया। अब एक बार हम लोग चेक करते हैं कि ये फाइल बन गया है कि नहीं बना है। ठीक है, ये देखिए डेमो राइट फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट, फाइल बना दी इसने। अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो फाइल बना दिया इसने। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, अब देखिए मेरे पास फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। अब अगर मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये क्या होगा, ट्राइब के अंदर आएगा, फिर ये उसका रेफरेंस लेगा उस फाइल का, चेक करेगा अब कि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये कंडीशन अब ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फाइल अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे ही एग्जिस्ट करेगा तो ये इस इफ वाले ब्लॉक में आ जाएगा और सिंपली इसको प्रिंट करके आगे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये आउट हो जाएगा। एक बार रन करें दोबारा, चलिए रन करते हैं इसे। सी दिस टाइम हमारा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, फाइल एग्जिस्ट वाला। इसका मतलब क्या है, ये फाइल पहले से अवेलेबल है। या इसका मतलब ये है कि अगर कल को कभी ऐसा हो गया एग्जाम में, आपके पास प्रैक्टिकल प्रोग्राम में आ गया या लैब में आ गया कि आपको एक फाइल जो है ये इसका पाथ ये है, आपको चेक करना है कि फाइल हमारे ड्राइव पे अवेलेबल है या नहीं है, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है,
एग्जिस्ट मेथड यूज करना है। ठीक है, अगर मुझे किसी फाइल को क्रिएट करना हो तो फाइल के कंस्ट्रक्टर में मैं फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर में मैं क्या पास करूँगा, उसका पाथ पास करूँगा। ठीक है, और अगर फाइल मुझे नया बनाना हो तो मैं क्या मेथड यूज करूँगा, क्रिएट न्यू फाइल। यस, अब बताइए, कोई पूछ रहे थे, निरुपम कौन थे? सर हाँ अगर सर। मान लेते हैं कि एच एच ड्राइव के अंदर में मेरे को कोई और फाइल बनाना है, तो ये एच ड्राइव के मतलब अंदर जो भी है वो मेरे को पूरा पैथ कॉपी करना पड़ेगा या सिर्फ ऐसे मान करके लीजिए हो एच जाएगा? ड्राइव में मुझे निरुपम नाम की फाइल बनानी है। ठीक है, और सर उसके अंदर फिर मुझे उसके अंदर मुझे एक फाइल बनानी है, मतलब फाइल निरुपम नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी है जो बिल्कुल कि बना एच ड्राइव में स्टोर्ड है। बिल्कुल बना सकते हैं, अभी उस पे भी आएंगे। डायरेक्टरी जब बनाएंगे ना हम लोग तो उस पे भी आएंगे अभी। ओके सर। ठीक है, चलिए अभी मैं फिलहाल अब नाम लिख दिया सर तो एक निरुपम नाम की फाइल बना ही देता हूँ, है ना। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है निरुपम, देखिए ये हुआ कि आपने अभी डायरेक्ट एच ड्राइव के अंदर बनाया। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मुझे डायरेक्टरी बनाना हो, ठीक है, तो जब आप इस तरह का पाथ देंगे तो ये डायरेक्टरी वाइज भी बना देगा। ठीक है, उस केस में आपको मेक डायरेक्टरी पहले यूज करना पड़ेगा। MKDIR जो है ओके वो डायरेक्टरी बनाने का काम करता है। ओके सर। जैसे कि अगर मुझे एच ड्राइव के अंदर टेम्प के अंदर टेम्प 1 टेम्प 2 मतलब जिस तरह का भी आर्किटेक्चर आपको बनाना हो, जिस भी फोल्डर सब फोल्डर का बनाना हो आप बना सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले चेक करता हूँ कि एच ड्राइव में टेम्प फोल्डर है या नहीं है। एच ड्राइव में कहीं भी आपको टेम्प फोल्डर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो अब हम लोग आते हैं और अपना प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक है, इसने क्या रिस्पॉन्स दिया है? सक्सेस। सक्सेस का मतलब है कि ये देखिए यहाँ मेक डायरेक्टरी। अब आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, दोनों ये देखिए इसने टेम्प फोल्डर के अंदर टेम्प 1 टेम्प 2 और इस तरह से आप जितने भी फोल्डर बनाना चाहिए फोल्डर क्रिएट कर देगा। ठीक है, निरूपम का सवाल क्रिएट डायरेक्टरी कैसे करते हैं। हाँ, अब कौन पूछ रहे थे? किसी और ने भी कुछ क्वेश्चन बीच में पूछा था। यस सर, जैसे कि हम लोग वहाँ पे पाथ सेट किए हैं, जो हम लोग एच दिए हैं, फिर उसके बाद डबल डॉट है, फिर स्लैश है। अगर हम लोग ऐसा कुछ नहीं दे, अगर हम लोग सिर्फ एक जैसे टेम्प लिख दे और कोई भी पाथ नहीं सेट करे, तो सर वो मतलब किस जगह स्टोर होगा वो वाला हम लोग का जो डायरेक्टरी रहेगा सर? उस केस में देखिए ये अपना कोई पाथ जो है ना, ये टेम्पररी फोल्डर का पाथ तो उठाएगा ही उठाएगा। ठीक है, अभी उसे चेक कर लेते हैं। इसकी बात कह रहे हैं? यस सर। देखो इसने बनाया तो है, कहाँ बनाया है ये देखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इसे टेम्प फोल्डर में बनाना चाहिए। कुलदीप, मैं इसका चेक करके बताता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं। ठीक है। और सर जो हम लोग कोई भी मतलब फाइल बना रहे थे, हम्म, तो हम लोग उसके पीछे जो एक्सटेंशन लगाएंगे वो उस का फाइल बन जाएगा ना सर? हाँ उसका फाइल बन जाएगा, अभी देखो चेक जैसे करते हैं। .txt दे रहे थे। ये सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बना लेते हैं, अभी बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे अगर मैंने बना दिया सपोज HTML। ठीक है, ट्राई करें इसको बनाने की। यस सर।
ठीक है, ये देखिए मैंने निरुपम डॉट HTML बना दिया है। बन गया HTML फाइल। यस ये सर। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल बनाया था, तो ये टेक्स्ट फाइल बना था। निरुपम HTML बनाया तो ये HTML फाइल बन गया। कैसे चेक करेंगे कि ये HTML फाइल बना है? अभी इसकी एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए टाइप ऑफ फाइल क्या है, .html। ठीक है, ये तीनों देख लिया हम लोगों ने कि अगर मुझे रीड करना हो किसी फाइल से तो कैसे रीड करूंगा, राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे, अगर मुझे ये चेक करना हो कि फाइल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये सारी ये जितने भी फाइल्स हैं आपको जो अभी मैंने दिखाया, इनको जो है आपको एक एक करके रन करके देखना है। ठीक है, आपको जितने भी हैं रन करके देखना है। अब जैसे देखिए क्रिएट डायरेक्टरी हम लोगों ने देख लिया था। एक बार बफर्ड इनपुट स्ट्रीम रीडिंग का भी देख लेते हैं हम लोग कंसेप्ट। ठीक है, ये देखिए अगर मुझे किसी बाइट वाइज यूज करना हो, मुझे बाइट में अब अपना ऑपरेशन करना है। ठीक है, लाइन में नहीं करना है, कैरेक्टर में नहीं करना है, मुझे बाइट वाइज करना है। ठीक है, उस केस में अगर मुझे बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का यूज करके रीड करना है मुझे, तो कैसे करेंगे हम लोग? बफर्ड इनपुट स्ट्रीम में अगेन सेम थिंग, हम लोग पाथ देंगे जिस फाइल को रीड करने का है, और ये रीड करने का तरीका है रीड के थ्रू, रीड मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग ये पास करेंगे कि ये देखिए ये जो है ना इसको बाइट में कन्वर्ट करके, और ये तब तक करेगा जब तक -1, -1 किस लिए दिया गया है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब तक इंड ऑफ फाइल नहीं पहुंचता है। इंड ऑफ फाइल कैसे पहुंचेगा? इंड ऑफ फाइल पहुंचने का मतलब है कि अगर उसे -1 मिल गया कैरेक्टर में, -1 का यूनिकोड अगर उसे मिल गया, तो इसका मतलब है कि वो इंड पे पहुंच चुका है। ठीक है, ये देखिए रीड करने का तरीका है। एक और इसको व्यू देखते हैं। बट मोस्टली जो आपका यूज होगा वो होगा डायरेक्ट जो फाइल क्लास है। फाइल क्लास डायरेक्ट यूज हो सकता है। रीड पर्पस के लिए आप लोग बफर्ड इनपुट स्ट्रीम यूज कीजिएगा, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम राइट करने के लिए यूज कीजिएगा। ये दोनों ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, इन दोनों का यूज करना आपको परफॉर्मेंस वाइज बेटर रिजल्ट देगा। डायरेक्टरी अगर क्रिएट करना है, आपने देख लिया मेक डायरेक्टरी के थ्रू करते हैं। अगर एग्जिस्ट है कि नहीं, फाइल अवेलेबल है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग एग्जिस्ट मेथड यूज करते हैं। पाथ का कंसेप्ट अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि रिलेटिव पाथ यूज करने पे क्या हो रहा है, और अगर रिलेटिव पाथ यूज नहीं करते हैं, एब्सोल्यूट पाथ देते हैं, तो क्या हो रहा है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हम लोगों ने अभी यूज किया है। अब जैसे एक एक है, कभी कई बार ऐसा होता है कि आपके पास लिस्ट ऑफ फाइल्स हों, तो लिस्ट ऑफ फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए जिप फाइल का यूज करते हैं। जिप जिप फॉर्मेट में उसे स्टोर करते हैं, और उसके बाद उसे नेटवर्क पे हम लोग ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो कम डेटा कम साइज होने की वजह से वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक बार ये क्रिएट जिप करने का भी तरीका देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है आपका वो ये है, जिप आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, जिप आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करके हम लोग जिप फाइल को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और आपके पास कई बार जब आप ऑपरेशन करेंगे फाइल्स के ऊपर, तो एक ये रह सकता है कि मेरा कोई फ़ोल्डर है, उस फ़ोल्डर के अंदर मेरे जितने भी फाइल्स हैं, उन सब की लिस्टिंग दे दो कि कौन-कौन से फाइल्स मेरे अवेलेबल हैं। अब उस केस में भी आप ये दे सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन का जो फ़ाइल है, केवल वो मुझे रीड करके दे दे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो देखो मेरा ये मैंने पाथ दिया है इसका फाइल हैंडलिंग का, एच ड्राइव के अंदर ये कंप्लीट ये एब्सोल्यूट पाथ दिया मैंने। ठीक है, फाइल हैंडलिंग यानी इस ये जो पैकेज है यहाँ तक का दिया है। अब अगर मैं इसको रीड करूँगा तो इसे क्या देना चाहिए, ये सारे फाइल्स का नेम लिस्टिंग में दे देना चाहिए कंसोल पे। ठीक है, ये देखिए आपके इसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं, इन सब का फाइल का नेम इसने दे दिया कि इस फोल्डर के अंदर इतने सारे फाइल्स आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपको फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट में बेसिकली यूज होने थे। अब इन सब फाइल्स को जो है आपको जाकर एक एक करके
आपको क्या करना है कि रन करके देखना है। चलिए मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा इसे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा एक स्प्रिंग बूट के बारे में जान लें। पहले फाइल हैंडलिंग के केस में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, या बिल्कुल नहीं आया? अगर आज 20 लाइन बताई गई है, अगर इसमें 5 से 8 लाइन 10 लाइन भी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अभी इसको जाके प्रैक्टिकल कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। स्पेशली फाइल क्लास, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, मेक डायरेक्टरी, एग्जिस्ट मेथड एंड रिलेटिव पाथ क्या है, एब्सोल्यूट पाथ क्या है, इसका कंसेप्ट। और क्यों फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट आया, ये आपको पहले ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी, कि फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट क्यों आया, ठीक है। कौन सा पैकेज हमारा यूज हो रहा है, ये आपको बता दिया गया कि java.io पैकेज यूज होते हैं हमारे, ठीक है। मॉक इंटरव्यू के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। इस सैटरडे मॉक इंटरव्यू होगा। टॉपिक आपका यही 3 है, फाइल हैंडलिंग, कलेक्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। इन 3 टॉपिक से जावा से रहेगा, जावा में इन 3 टॉपिक से रहेगा। और जो बेसिक बताया गया है मेगा मैम का, वो उनके तरफ से रहेगा। बाकी 70% क्वेश्चन रहेंगे इनसे। 30% क्वेश्चन जो है वो आपके कहीं से भी हो सकते हैं। आपने जो पढ़ा है, बाकी 30% वो क्वेश्चन वो कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। टाइम लिमिटेड नहीं है कि एक स्टूडेंट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं अपना टाइम, ठीक है। सर यस यस, अभी अभी क्लास है अभी। वेट, मैं वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा। 9 दिसंबर को तो आप सेकंड मंथ वाला का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है ना? सैटरडे है ना, वो अलग अलग टाइम में रहेगा वो। अच्छा ठीक है। क्या सीन है प्रोजेक्ट का, आप लोग कर रहे हैं कुछ, कोई दिक्कत आ रही है उसमें? स्टैटिक प्रोजेक्ट में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, डायनेमिक में तो समझ में आता है। बनाया आप लोगों ने कुछ?